Praise the Lord, Gospel Vibrants. It's such a joy to see you all. I am delighted to have you all amongst us. A youth ministry grows because of supernatural activities. Thus, growth is accomplished through the Holy Spirit. So, before moving further, we will hear a small story from the Bible, John chapter 6. So, while Jesus was preaching in Galilee, a large crowd gathered before him in order to receive blessings, deliverance, to overcome their sicknesses through Jesus Christ. So, when Jesus saw the crowd, he said to his disciples that make some arrangement for their food. But his disciple Philip said that there are so many people in this crowd, how can we get food for so many people? Now Jesus knew what he was going to do, but he did this in order to test them. Afterwards, one of his disciples, Andrew, he said that there is a small boy here who has 5 breads and 2 fish with him. Jesus said that bring it to me. He made the crowd sit down. He took the 5 breads and 2 fish in his hands, blessed it and distributed all over the crowds. All the crowds ate the 5 breads and 2 fish, and none of them remained hungry. All of them were satisfied by eating the food. And after that, 12 baskets were still remaining. So, what do we learn from this story? Just like Philip and Andrew, we have times in our lives when our life circumstances seems impossible or very difficult. Like we think it's very difficult, I can't do this, it's impossible. But no matter however small or less we may be, whenever we surrender or submit ourselves in Jesus' hands, He blesses us abundantly. He makes us a reason of blessing for thousands and thousands of people, because our God is great. He is the God who can make the impossible into possible. Sometimes from our perspective, the problems may appear impossible or difficult, but our God is God of possibilities. He is great. His grace is sufficient. His power is absolute. We learn from these words that we might be very less or very small, just like this 5 breads and 2 fish. But after coming in Jesus, He blesses us abundantly, because God is able to accomplish infinitely more than we might ask or think. He just needs our humbleness, our obedience. Because God doesn't need our extraordinary talent. He needs our fearless obedience. So now I would like Sister Sneha to come further and start this session with this short prayer. Let's close our eyes and pray. Heavenly God, Father, thank you for this beautiful evening. We have gathered here to raise and praise your holy name. Lord, whenever you have asked us to do something, the results are so much greater than we could have ever imagined. Even in our failed attempts, you have helped us and provided us with a faithfulness. Lord, today I ask you to do your will throughout this event. Please steer our intentions to align with your righteous will. Please provide peace through our hearts and guide our mind to be in your way. Amen. Please, Lord, help us and be our guiding light throughout this event. In Jesus' name I ask. Amen. Praise the Lord, Gospel Vibrants. Are you excited for the worship? Yes. Let us worship His beautiful name. Let us glorify His beautiful name. Lord, I come. Lord, I confess, bowing down, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I come. Lord, I come, I confess, bowing down, I find my rest. Without you, I fall apart.
You're the one that guides my heart. With all our voice, Lord, I confess, bowing down, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. By lifting our hands, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. With all our heart, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Let's wave our hands. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. प्रभु मैं चाहूँ तुझको चाहूँ हर समय मैं चाहूँ मेरे रक्षक मेरी धार्मिकता प्रभु कैसे तुझे चाहूँ प्रभु मैं चाहूँ तुझको चाहूँ हर समय मैं चाहूँ मेरा एक रक्षक मेरी धार्मिकता प्रभु कैसे तुझे चाहूँ प्रभु मैं चाहूँ तुझको चाहूँ हर समय मैं चाहूँ मेरा एक रक्षक मेरी धार्मिकता प्रभु कैसे तुझे चाहूँ Lord, I come. Lord, I come. I confess, bowing down, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I come, I confess, bowing down, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. By lifting our hands, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My
Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense. Defend my righteousness. Oh God, how I need you. प्रभु मैं चाहूं तुझको चाहूं हर समय मैं चाहूं मेरा एक रक्षक मेरी धार्मिकता प्रभु कैसे तुझे चाहूं हाथ उठाकर प्रभु मैं चाहूं तुझको चाहूं हर समय मैं चाहूं मेरा एक रक्षक मेरी धार्मिकता प्रभु कैसे तुझे चाहूं Lord I need you oh I need you every hour I need you my one defense my righteousness oh God how I need you blessing runs deep your grace is more where grace is found is where you are and where you are Lord I am free holiness is crushing me all together blessing runs deep your grace is more where grace is found is where you are and where you are Lord I am free holiness is crushing me Lord I come Lord I come I confess bowing down I find my rest without you I fall apart you're the one who guides my heart Lord I come I confess bowing down I find my rest without you I fall
find my rest without you. I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Everything on it. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. प्रभु मैं हाथ उठाकर, प्रभु मैं चाहूं, तुझको चाहूं। हर समय मैं चाहूं, मेरा एक रक्षक, मेरी धार्मिकता, प्रभु कैसे तुझे चाहूं। प्रभु मैं चाहूं, तुझको चाहूं। हर समय मैं चाहूं, मेरा एक रक्षक, मेरी धार्मिकता, प्रभु कैसे तुझे चाहूं। प्रभु मैं चाहूं, तुझको चाहूं। हर समय मैं चाहूं, मेरा एक रक्षक, मेरी धार्मिकता, प्रभु कैसे तुझे चाहूं। We will thank God for this awesome and glorious worship. Now we will move further towards our preaching. I would like to hand over the mic to Pastor Elvin and to lead us through the word. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, everyone. Greetings to you in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महान अति पवित्र नाम में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने लोग जो इस लाइव प्रार्थना में हमें देख रहे हैं, खासकर आज की प्रार्थना उन सारे जवान बच्चों के लिए मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। प्रभु ने एक अच्छा जवान
टीम हमारे मिनिस्ट्री में दिया। प्रभु की बेटी वैष्णवी एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इस आराधना में दिया। उसके बाद हमारे जो खोयर टीम है, संखिंदू, ब्रायन और जो भी बच्चे, अच्छी आराधना हमारे बीच उन्हें रखी। आइए बच्चों, आगे के समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज इस शाम की प्रार्थना में बच्चों, हर समय संडे आराधना में अच्छा प्रचार हम सुनते हैं। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज हमको मिलता है। लेकिन खास ये सैटरडे के दिनों में एक अच्छा बाइबल स्टडी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि बड़े लोग बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ता। आमेन। आप लोगों को कंफ्यूजन होता है ना? जब हम फायर एनॉइंटिंग के बारे में प्रीच करता है, जब हम आत्मा के हवा के बारे में प्रीच करता है, तो आप बच्चे लोग ढूंढते रहते हैं कि फायर कहाँ है, ये हवा कहाँ है। आमेन। तो इसलिए खास ये यूथ नाइट के दिन हम खास बाइबल स्टडी की ओर ध्यान देंगे। आमेन। तो इस आराधना को आप लोग कभी मिस नहीं करना। हर सैटरडे, हर महीने के सेकंड सैटरडे कुछ ना कुछ नया, आमेन, कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यूएबल चीज हम सीखेंगे। आमेन। आज का मेरा विषय है प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विंग गॉड हमने सीखा। पिछले यूथ नाइट में हमने सीखा क्या महत्व है प्रभु की सेवकाई का। प्रभु की सेवा करते करते हमारे अंदर दिल से कैसा एक विश्वास होना चाहिए। और आज इस प्रार्थना में हम सीखेंगे क्या होता है प्रार्थना। आमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेयर। आमेन। क्या है प्रार्थना का शब्द का अर्थ, क्या है प्रार्थना का मतलब जो हमारे यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। आमेन। अक्सर सालों से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ऐसा हम चिल्ला चिल्ला कर लोगों को समझाता है। आमेन। तो आपको इतना पता है कि प्रार्थना क्या चीज होता है ना? आपको ये पता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है, बस इतना पता है, उससे आगे और कुछ पता नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज इस आराधना में प्रार्थना का असली मतलब हम सीखेंगे। आमेन। आइए प्रभु के वचन की ओर हम जाएं। सबसे पहले याद रखना, द प्रेयर एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन यू एंड गॉड। प्रार्थना आपको परमेश्वर से कनेक्ट करता है। आमेन। प्रार्थना एक ऐसा सोर्स है जो आपको प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करता है। आमेन। बाइबल में दो भाग हैं, हम देख सकते हैं। पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। आमेन। ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यादातर लोगों को प्रभु के पास, प्रभु के अभिषक्ति के पास जाना पड़ता था परमेश्वर से कुछ बातें करने की। लेकिन नया नियम में
जब हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह ने कहा अभी तुम्हें किसी अभिषक्ति के द्वारा परमेश्वर को खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मेरे द्वारा तुम स्वर्गीय पिता तक पहुंच सकते हो। आमेन। दैट मीन्स जीसस इज अवर मीडिएटर। यीशु हमारा मीडिएटर है। उस खुदा के द्वारा हमारा सारा प्रार्थना का शब्द हम स्वर्गीय पिता तक पहुंचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखना बच्चों, प्रार्थना आपको परमेश्वर से कनेक्ट करता है। आमेन। जरूरी नहीं है ज्यादा जोर से प्रार्थना करेगा तो ही प्रभु को सुनाई देगा। बहुत दिनों पहले एक सिस्टर को मैं मध्यस्थी दिया। सिस्टर ने कहा हालेलुया बोलो। लोगों ने हालेलुया बोला। सिस्टर ने कहा जोर से बोलो, प्रभु को सुनाई नहीं दिया, और जोर से बोलो। आमेन। ऐसा नहीं है बच्चों, हमारा आवाज थोड़ा हो या हमारा आवाज ज्यादा हो। आमेन। बाइबल में तो लिखा है, दावीद ने कहा परमेश्वर मेरा फैमिली प्रॉब्लम के कारण या मेरे आसपास के सिचुएशन के कारण, वो पेनफुलनेस में मेरे मुंह से भी आवाज नहीं निकल रहा है ना। कभी कभी कुछ दुख देखकर हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता, सिर्फ आंसू निकलता है। लेकिन दावीद ने कहा वो आंसू का भाषा भी हमारा परमेश्वर पढ़ता है। हालेलुया। हमारे दिल में जो बात, भले ही शायद हम जबान से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन दिल में एक दर्द है, इस सब्जेक्ट में मेरा इतना कम मार्क क्यों मेरा मम्मी इतना मुझे डांटता है, क्यों मेरा दोस्त लोग मुझे इतना चिढ़ाता है। कभी कभी कुछ दर्द मन में रहता है, जबान पर आता नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा यीशु मसीह हमारी दिल की बातों को भी पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मैं स्नेहा का दर्द ना समझ पाऊं, लेकिन आज इस शाम की आराधना में यीशु मसीह कह रहे स्नेहा से, बेटा मैं जानता हूं तेरे एक दाएं पैर में दर्द है और मैं उस दर्द का चंगाई तुझे दूंगा। हालेलुया। कभी कभी कुछ रहस्य पाप, कभी कभी कुछ सीक्रेट चीज हम छुपाते हैं। आमीन। मेरे साथ भी आप छुपाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं। हम सबके जीवन में एक सीक्रेट होता है, लेकिन हमारा यीशु वो सारा सीक्रेट जानता है। याद रखना। हालेलुया। तो याद रखना, प्रार्थना हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। प्रेयर एक ऐसा चीज है जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। उस खुदा से कनेक्ट होने के बाद वो खुदा हमारे जीवन में शांति लेकर आता है। दूसरा, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम फील करते हैं कि कोई दुनिया बनाने वाला परमेश्वर मेरे बाजू में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यही है प्यारे बच्चों प्रार्थना का शक्ति। जब भी आप प्रार्थना में बढ़ोगे, याद रखना आप फील करोगे कि कोई व्यक्ति इस कमरे में मौजूद है। आमीन। कभी कभी जब कोई व्यक्ति हमें घूरता है तो हमारे अंदर से एक सेंस हमें बताता है कि कोई आदमी तुझे घूर रहा है। अचानक हम उस व्यक्ति को देखते हैं, है ना। हम फील करते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, कोई इंसान मुझे देख रहा है। उसी तरह याद रखना, अगर आप प्रार्थना में बढ़ेंगे तो यू विल फील द हेवनली प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक स्वर्गीय उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भी प्रार्थना रोकना नहीं, आलसीपन दिखाकर प्रार्थना बंद नहीं करना, क्योंकि प्रार्थना बंद हो जाएगा तो प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। फिर हम क्या सोचेंगे, मैं ये मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, मैं अपने बलबूते में ये लड़ाई जीत लूंगा, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन नहीं, दैट मीन्स प्रेयर bring us to the presence of God
दूसरा, प्रार्थना हमारे नजरिए को बदलता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर को देखने का जो नजरिया है, आमेन। आप लोग बच्चे यही सोचकर आराधना कर रहे होंगे कि कैसे भी एक प्ले स्टेशन 5 मुझे मिल जाए, एक अच्छा वीडियो गेम मुझे मिल जाए, एक अच्छा बाइक मुझे मिल जाए, है ना। हम परमेश्वर को एक अलग नजरिए से देखते। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके मांगने से बढ़कर है हमारा खुदा। और याद रखना, जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर को देखने का आपका नजरिया पवित्र आत्मा बदलेगा। आमेन। दूसरा है, प्रार्थना से हमारा परिस्थिति परमेश्वर बदलता है, हमारा सिचुएशन परमेश्वर बदलता है। कितना भी गुस्सा अंदर होने दो, जब हम एक बार प्रार्थना करेगा तो हमारे उस गुस्से के वातावरण को यीशु बदलता है। आमेन। प्रार्थना एक बहुत बड़ा कनेक्शन है बच्चों। याद रखना, बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता था। उस भविष्यवक्ता ने अपने लोगों से कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमें देखकर इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बेटी जुबान खोलेगी और उसके शब्द को मैं सुन सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन मैं आपको बाद में दूंगा। आमेन। ब्रायन मुझे बोर करेगा तो मैं बोलूंगा, बेटा थोड़ा मुंह बंद कर, है ना। आपकी भाषा में ज्यादा पका मत, ऐसे हम बोलते। लेकिन बच्चों याद रखना, परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थना को सुनकर ऐसा नहीं बोलेगा। वो खुदा इतना हमसे प्यार करता। आमेन। कितना भी प्यार मुझे आपसे हो, ज्यादा मैं आपका भाषण नहीं सुनेगा, है ना। लेकिन प्रभु, पुराने नियम में क्या लिखा है? अवर गॉड इज वेटिंग टू लिसन अवर प्रेयर। आमेन। वो खुदा स्वर्ग से पूनम को देखकर ऐसा सोचते हैं, पूनम आज शाम को थोड़ा 1 घंटा समय बिताना। आमेन। वो खुदा सांझ को देखकर सोचते हैं, सांझ कल सुबह उठेगा तो 15 मिनट मुझसे बातें करने का। वो खुदा पूजा को देखकर यही बोलते हैं, पूजा तू कुछ बातें कर, तू तेरा दर्द बात, तेरा तो हमारी बातें सुनना चाहता। इसलिए अगर मम्मी बोलेगा मुंह बंद करके बैठ जा, अगर पापा बोलेगा मुंह बंद करके बैठ जा, तो याद रखना, आपका बोरिंग बातें प्रभु सुनने के लिए तैयार है, प्रभु सहने के लिए तैयार है। तो प्रभु को जितना पीजे जोक सुनाना है, वो सब पीजे जोक आप सुना। ओके। आइए बच्चों, प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। द लेटर ऑफ 1 John chapter 5 verse 14 and 15. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Amen. Amen. इसे हिंदी में भी पढ़े, चैप्टर वर्स 14 and 15 हिंदी में भी पढ़े। आराम से पढ़ना बेटा। हाँ, तेरे को भूख लगा है, आराम से पढ़ो। अभी हमारा बाइबल स्टडी का समय है ना, हम एक एक वचन, एक एक फुल स्टॉप हम सीखना है, कॉमा हम सीखना है। हाँ, ओके। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। आमेन। और प्यारे बच्चों, इस वचन में क्या लिखा है? जो भी प्रार्थना हम कर रहे हैं, याद रखना, सब कुछ प्रेयर प्रभु नहीं सुनेंगे। आमेन। आप भी सोच रहे होंगे, अरे यार मैं तो कुछ ज्यादा ही प्रभु से मांगता था। आमेन। इस वचन में क्या लिखा है? तुझे क्या करना है? सबसे पहले यीशु का इच्छा को
समझना है। यीशु का इच्छा तू समझ जाएगा तो तेरी प्रार्थना को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का इच्छा कैसे समझेंगे? ऑफ कोर्स बाइबल पढ़कर, क्योंकि हमारे पवित्र बाइबल में यीशु मसीह को कौन सा व्यक्ति पसंद है, कौन सा व्यक्ति नहीं पसंद है, ये सब वचन में लिखा है। आमेन। यीशु ने फॉर एग्जाम्पल यीशु ने कहा चोरी नहीं करना, तो हमें मालूम पड़ता है अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो खुदा हमें अपना संतान मानता है, वो अपना प्यार बरसाएगा। लेकिन हम चोरी करेंगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। आमेन। तो बच्चों, प्रार्थना का पहला जो पॉइंट है वो यही है कि कुछ भी मत मांगो। प्रार्थना में कुछ भी आप मांग नहीं सकता प्रार्थना में, ठीक है? परमेश्वर को आपने नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है। और इस वचन में साफ लिखा है, ये वचन यही बताता है कि बेवकूफ बनकर कुछ भी मत मांगो। मांगने का एक लिमिट होता है, सॉरी लिमिट नहीं, मांगने का एक तरीका होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, उसके 14 के वचन को पढ़ेंगे। दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन हिंदी में पढ़ो बेटा। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन में पवित्र आत्मा हमें बताना चाहते हैं, यदि हम उस खुदा के इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो खुदा हमें देगा। वो खुदा सोच कर देगा, वो खुदा बाद में देगा, वो खुदा डगमगा कर देगा नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। उस खुदा की इच्छा से मांगेगा तो 99% नहीं 100% वो यीशु आपको ब्लेस करेंगे। आमेन। 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 इसलिए प्यारे बच्चों, उस खुदा की इच्छा के अनुसार, यानी पास्टर जी यीशु की इच्छा हम कैसे समझे? आमेन। अभी हमारे एल्विन पास्टर का बर्थडे आ रहा है ना? मेरा बर्थडे कभी है? 17 अप्रैल। ओह, इतना गलत कैसे हो सकता है यार? 18 अप्रैल मेरा बर्थडे 18 अप्रैल को। हाँ, मेरा बर्थडे 18 अप्रैल को है ना? वो गलत डेट बोलेगा तो बुरा लगता है दिल से। मेरा बर्थडे 18 अप्रैल को है ना? तो आप लोग अगर गिफ्ट देने का कोशिश करेंगे, मोस्टली आप लोग यही सोचता है कि हमारे मन का नहीं, पास्टर को जो अच्छा लगे, या मेरा गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो उन्हें बहुत अच्छा लगे। बाकी सांझ का वो फेंकना चाहिए, सुष्मिता का वो फेंकना चाहिए, है ना? मेरा गिफ्ट, ऐसा हम सोचते। उसी तरह बच्चों, परमेश्वर का मन जानना है तो हमें बाइबल में अच्छा समय देना होगा, क्योंकि बाइबल में आप सब साफ तरीके से पता कर सकते हैं कि यीशु का इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको यीशु का इच्छा समझना है तो आज घर जाकर 4 अध्याय पढ़ो। वो होमवर्क मैं दे रहा हूं। एनी टाइम आपका घर में फैमिली प्रेयर होगा, है ना? आपको बाइबल रीडिंग का एक टाइम टेबल होगा। पढ़ना है तो द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7 और 8, ये 4 अध्याय आप अच्छे से आज से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इस 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छा शिक्षा, आमेन, बहुत अच्छा शिक्षा कैसे मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे बच्चा कौन सा आदत छोड़ना चाहिए, कौन सा आदत में चलना चाहिए, सब प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे से बताया है। तो आप जब भी बाइबल मेडिटेशन करेगा, ये 4 चैप्टर आज से पढ़ना शुरू करो। ओके आशीष, वो कौन सा चैप्टर है? हाँ, मैथ्यू 5, 5, 6 और 7 और 8। ओके, ये
आप पढ़ो, आपको काफी प्रभु का इच्छा के बारे में मालूम पड़ेगा, पूरा नहीं पर काफी मालूम पड़ेगा। आगे मैं और वचन दूंगा। तो बच्चों याद रखना, प्रार्थना में कुछ भी मत मांगने जाओ। हाँ, मेरा पड़ोसी को ठोक दो परमेश्वर, ऐसा मत मांगना, है ना। मुझे वीडियो गेम दे दो, मुझे नया आईफोन कौन सा निकला है 13, हाँ 13 प्रो, मेरा पापा का किडनी ले लो। हाँ, ऐसा दाव पे डालते हैं परिवार को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बच्चों प्रभु का इच्छा हमको समझना है। वचन में क्या लिखा है, स्वर्गीय पिता की इच्छा जानकर जब तू मांगेगा तो प्रभु तुझे देगा। आमेन। उसी तरह याद रखना, जब प्रार्थना करोगे तो ये भी प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा है तो मुझे तो दे। मिला नहीं परमेश्वर, होता नहीं परमेश्वर बोलकर खुदा से शिकायत नहीं करना है। सबसे पहले यही प्रार्थना कर कर पूछना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। क्योंकि बच्चों कभी कभी प्रभु नहीं चाहते कि वो फोन आपको मिले, क्यों? उससे भविष्य खराब हो जाए। कभी कभी प्रभु नहीं चाहते वो दोस्त आपके करीब आए, क्यों? आपका जीवन में बुरा स्वभाव आ जाए। आमीन। इसलिए याद रखना, कुछ भी अंधाधुंध मांगना नहीं है परमेश्वर से। प्रभु से मांगो, प्रार्थना में मांगो, लेकिन प्रभु का स्वभाव भी जानने का कोशिश करो। आमीन। एक बार एक सिस्टर मेरे पास आई, उन्होंने कहा मेरा सास मुझे बहुत सताता है, आप वो ऑफिस से कुछ पावर भेजो मेरा सास। मैं बोला ये क्या है, कुचली करना है गले में? नहीं, उसको एनकाउंटर करने का है। मैं बेल बजाया, मैं बोला स्टाफ इसको लेके जाओ, आइंदा इसको अंदर नहीं घुसाने का। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ में आया, कुछ भी हम मांग नहीं सकते, है ना, कुछ भी हम मांग नहीं सकते। हमें प्रभु का इच्छा का जानकारी होना है। आमीन। तो बच्चों प्रार्थना सीखते सीखते सबसे पहले प्रार्थना में पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं? पवित्र आत्मा एक प्रार्थना का जगह हमारे जीवन से चाहते हैं। होली स्पिरिट वांट अ प्लेस ऑफ प्रेयर इन अवर लाइफ। एक प्रार्थना का जगह प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। यस, हिंदी में पढ़ना बेटा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 पढ़ेंगे। बाइबल खोलने में टाइम लग रहा है तो हमारे पास कंप्यूटर है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। आमेन। प्यारे बच्चों, इस वचन में पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं? Holy Spirit is telling through this word that you have to find a place of prayer. जो भी घर में आप रहते हैं, आपको एक ऐसा जगह ढूंढना होगा और उधर ही एक प्रार्थना आपको शुरू करना होगा। ऐसा नहीं लेटते लेटते प्रार्थना कर लिया, बाथरूम में नहाते नहाते प्रार्थना कर लिया, हाँ, या फिर रास्ते में चलते चलते प्रार्थना कर लिया। मैं ऐसा ही था। जब मैं स्कूल में जाता था 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में, तो मैं बहुत स्कूल में लेट हो जाता था और जैसे ही सब यूनिफॉर्म सब पहनकर मैं दरवाजे से बाहर निकलता था, मम्मी कहती थी अरे तू प्रेयर नहीं किया। तो मैं भागता था, स्वर्गीय पिता प्रभु मुझे संभाल, आमेन करके मैं भागता था। हाँ, आप लोग बहुत लोग सीरियस है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, अच्छा ये प्रार्थना चलेगा नहीं क्या, बाप रे। तो मैं 10-12 सीढ़ी चढ़ता था,
एकदम शरीर वाइब्रेट होता था। यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रेयर करता था। मम्मी भी हंसती थी, मम्मी भी सोचती थी प्रभु तू छड़ी मार इसके सर पे, कब सुधरेगा। ये कोई जगह होता है जिधर डॉगी आकर सुसु करके गया, जिधर डॉगी आकर पोटी करके गया, उधर भाग भाग के प्रेयर करता है प्रभु बचा ले, आज एग्जाम है परमेश्वर, टीचर मेरा चिट पकड़ना नहीं चाहिए, प्रभु संभाल करके। आमीन। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, यीशु मसीह ने मैथ्यू 6:6 में क्या कहा? अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और उस खुदा से गुप्त में अपनी बातें करो। आमीन। इसमें दो चीज पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। पहला, एक प्रार्थना का जगह तुम्हारे घर में तुम लोग ढूंढो। क्यों यीशु मसीह हमें वो जगह ढूंढने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि उस जगह को तुम मेंटेन कर सकता है, उस जगह को देखकर तुम महसूस कर सकता है कि इस जगह में मुझे घुटना टेकना है, ये जगह मेरे प्रार्थना का जगह है। वो जगह को जब भी तुम देखोगे, आमीन, तुम्हें यही फील होगा कि ये मेरा स्पिरिचुअल एरिया है, इधर मैं रोज प्रार्थना करूंगा। आमीन। तो आज से बच्चों एक प्रार्थना का जगह ढूंढ लेना। सुबह उठते उठते लेटते समय भी कोई प्रेयर करता है, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, ऐसा प्रेयर नहीं करना। एक अच्छा जगह ढूंढो। मेरे घर में कमरा नहीं, मेरे घर में टेरेस नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी जगह, कोई एंगल भी होगा, आप वो जगह ढूंढकर उधर ही आज से प्रार्थना शुरू करो। 10 जगह बदलो मत। आमीन। एक नारियल 4 टुकड़ा कर 10 जगह गाड़ेगा तो नहीं उगेगा, लेकिन वही अक्खा नारियल एक जगह गाड़ेगा तो बहुत अच्छा पेड़ उधर उगेगा। उसी तरह पवित्र आत्मा बता रहे, एक प्रेयर प्लेस आप ढूंढना शुरू कर। मेरा वाइफ का एक प्रार्थना जगह है, वो उधर ही प्रेयर करते हैं। मेरा एक प्लेस, प्रेयर प्लेस है, मैं उधर ही प्रेयर करता है। आप पूजा को पूछ सकते हैं। मेरे पापा का एक प्रार्थना का जगह है, मेरा मम्मी का एक प्रार्थना का जगह है, और उधर ही उस जगह को मान सम्मान देकर हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए बच्चों, आज इस शाम के समय पवित्र आत्मा आपको एक काम दे रहे, आज से घर में जाकर एक अच्छा जगह ढूंढना है, उधर ही प्रार्थना करना है। याद रखना, फैमिली प्रेयर का बात नहीं चल रहा है, पारिवारिक प्रार्थना हॉल में किधर भी, लेकिन आपका पर्सनल प्रेयर का बात चल रहा है। और यीशु ने अपने वचन में कहा, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस ऑफ प्रेयर। एक जगह ढूंढो, आपका पर्सनल जगह, आपका खास जगह, जिधर आप खुदा से कनेक्ट हो सकते हैं। आमीन। आज से वो ढूंढना, उधर ही आप प्रेयर कर। कमरा होना जरूरी नहीं है, एक कोना हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं आम के झाड़ में चढ़ जाओ, ओके। कोई घर का कोई जगह, कोई एरिया, उधर ही आप प्रेयर करो। याद रखना, आपको बहुत इमेजिनेशन प्रभु देगा, बहुत अनुभव पवित्र आत्मा देगा। आप बहुत ब्लेस फील करोगे जब आप एक प्रार्थना का कमरा ढूंढोगे, क्योंकि आज अगर ऐसा काम आप करोगे तो स्वर्ग का खुदा बोलेगा, आमीन, मेरी सपना ने मेरी महिमा का एक दिन एक जगह ढूंढा है, ये बेटी सच में मुझसे प्यार करता है। आमीन। आज से एक जगह ढूंढो। मैं आपसे कहता हूँ, आपका लाइफ आज से चेंज हो जाएगा। आमीन। जितने भी लड़का लोग हैं, जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, एक प्रार्थना का जगह, एक पर्सनल स्पेस है ना संकेंदु, हर जगह दोस्तों को ये लोग को घुसाने का जरूरत नहीं, वो एरिया में भगा देने का। ये लोग बोलना है 10,000 रुपया एंट्री। आमीन। जरी एक जगह, ब्रायन एक जगह, वो जगह किसी को बोलो भी मत, बोलेगा तो दोस्त आग लगा के जाएगा उधर। ओके, आपका एक पर्सनल। बच्चों, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर प्रार्थना करो। पहला अर्थ हम समझ गए,
हमारे यीशु मसीह एक जगह चाहते हैं हमसे, जहां हम रोज प्रार्थना कर सके। दूसरा अर्थ है, आपकी प्रार्थना आप किसी को दिखाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में क्या लिखा है, कमरे के अंदर जाकर क्या बंद करो? टी शर्ट का बटन बंद करो? नहीं, दरवाजा बंद करो। दैट मीन्स कोई देखना नहीं चाहिए कि तुम कैसे प्रार्थना करते हो, कैसे एंगल में प्रार्थना करते हो। आमेन। सूर्य नमस्कार स्टाइल में नहीं, है ना? सुष्मिता कुछ एंगल में प्रार्थना करता है, कौवा बन। तो प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं कि अपनी प्रार्थना किसी को मत दिखा। नहीं तो फिर लोग कहेगा मैं 2 घंटा प्रार्थना करता हूं। मेरे मम्मी को पूछो, मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूं। मैं कभी कभी मैं किसी के घर में जाता हूं तो मुझे दरवाजे से आवाज आती है, अरे एल्विन ब्रदर आ गए, चटाई लगा। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना का एक्टिंग करता है। वो लोग दिखावा कर रहे हैं कि पास्टर जी आप जो प्रचार करते हैं ना, हम चल रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन जीसस ने क्या कहा? कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर प्रार्थना कर। आमेन। आप पूजा से अगर पूछेंगे ब्रदर का रेगुलर टाइमिंग क्या है, वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैं दरवाजा बंद करता हूँ। कभी कभी रात के 3 बजे मैं उठता हूँ। मेरे प्रेयर करने का एक टाइमिंग स्टाइल है, मैं कभी उसे नहीं बताता, वो भी नहीं बताता। आमेन। तो याद रखना बच्चों, ये प्रार्थना का जो दिखावा है ना, ये यीशु को पसंद है। इस वचन से आप जानो। अगर आप दिखाओगे कि मैं सुबह 10 मिनट करता हूँ, मैं रात को आधा घंटा करता हूं, तो याद रखना आप खुदा के दिल को निराश कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब खुदा आपसे बात करना चाहता है, आपको पर्सनली खुदा ब्लेसिंग देना चाहता है। तो जो प्रकाशन प्रभु आपको देना चाहते हैं उसे 10 लोगों में बांटने का जरूरत नहीं। इसलिए पहला एक प्रार्थना का जगह ढूंढना है। दूसरा, प्रार्थना का दिखावा नहीं करना। आमेन। मैं घंटों प्रार्थना करता हूं। बहुत लोग पूछते हैं, ब्रदर कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए? कितने घंटे प्रार्थना के बाद बीबी मिलता है? कितने घंटे प्रार्थना के बाद इनोवा गाड़ी मिलता है? आमेन। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रार्थना एक अच्छे समय पर ज्यादा समय करोगे, है ना? जैसे कहा है, मोर प्रेयर मोर पावर। जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना अच्छा। लेकिन यीशु यही बताना चाहते हैं, ज्यादा प्रार्थना का दिखावा मत करो। आपके घर में कमरा है तो अच्छा है, दरवाजा बंद कर प्रार्थना करो। एकदम दरवाजा खोलकर हाथों को उठाकर सब माँ बाप को सुनाने का जरूरत नहीं। यीशु ने क्या कहा? फास्टिंग रिलेटेड भी प्रभु ने कहा। कुछ लोग आते हैं, मैं बोला क्या हो गया मैडम जी? वो 20 दिन उपवास। हमारे इधर भी एक ब्रदर था, 8 दिन का उपवास, 20 दिन का उपवास लेगा तो पूरा महाराष्ट्र को बता देता है, सुनो सुनो, है ना? इधर आएंगे उधर आएंगे, ऐसा चर्च में भी चलेगा। सिस्टर लेकिन बाइबल में क्या लिखा? यीशु ने कहा उपवास लेते समय पानी से अच्छा मुंह धो लो, सर में अच्छा तेल लगाओ। क्यों? किसी को दिखना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। मैं भी उपवास लेता हूं, लेकिन मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पापा प्रचार करते हैं 20 दिन का ले लो, 40 दिन का ले लो। वो वचन सुनने के बाद हम उपवास लेते हैं। लेकिन याद रखना, अपना प्रार्थना जीवन कितना घंटे आप करते, बताने का जरूरत नहीं। बताना नहीं है, यीशु को वो पसंद नहीं। उपवास कितना दिन करते हो वो बताना नहीं है। आमेन। हाँ, हमारे चर्च में हमने अनाउंस किया 3 days फास्टिंग है, बस हम लोगों को गाइड करो।
लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा राहुल से बात करेगा, बेटा एक 6 दिन उपवास में बैठो, है ना। रशिया यूक्रेन का बड़ा युद्ध चल रहा है, पवित्र आत्मा आदित्य को बोलेगा बेटा 2 दिन उपवास करो। तो जो पर्सनल उपवास है, आदित्य क्या करना है, किसी को बोलना नहीं है। उपवास होगा, थकावट होगा, चक्कर आएगा, पूनम बचा ले मुझे, गया गया नहीं, ये थकावट आदित्य पूरा कोशिश करना है कि किसी को मालूम ना पड़े। इसलिए यीशु ने बाइबल में क्या कहा, अच्छा चेहरा धो लो, बाल में तेल लगाओ, एकदम सुंदर बन के चलो, क्योंकि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से होना चाहिए। आमेन। इसलिए बच्चों याद रखना, एक प्रार्थना का जगह ढूंढो आज से। आमेन। आज ये प्रेयर होने के बाद प्रार्थना का कौन सा जगह आपने देखा मत बोलना, लेकिन प्रार्थना का जगह फिक्स कर लिया है तो मुझे आके बोलना है, पास्टर मैंने एक प्रार्थना का जगह ढूंढ लिया। आमेन। आप बोलो मुझे आके, ऐसी तुक्का मार के नहीं जाना, ढूंढ लिया नहीं, 1 हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, लेकिन एक ऐसा जगह ढूंढो जब तक वो घर में तुम जिंदा है, वो घर में वो जगह तुम घुटना टेक कर प्रार्थना करना। आमेन। अगर वो जगह ढूंढ लिया तो संकेत तो मुझे आके बोलना है, पास्टर मेरे को वो जगह प्रभु दिया, मैं उधर ही प्रभु को समय दूंगा। आमेन। दूसरा, प्रार्थना का दिखावा नहीं करना है। आमेन। कोई भी पूछेगा कितना घंटा करते हो, कितना मिनट करते हो, बोल देना 100 घंटा करते हैं, पागल बना के छोड़ देना उसको। आमेन। प्रार्थना का दिखावा नहीं करना बच्चों, हम सिखाएगा, प्रभु का अभिषेक सिखाएगा। पापा ने मुझे कहा है 1 घंटा प्रचार करना है तो 2 घंटा प्रार्थना, आधा घंटा वर्शिप करना है तो 1 घंटा प्रार्थना करना, है ना। संकेतु 20 मिनट किया, आज कितना मिनट प्रेयर किया, हाँ किया, मैं किया, थोड़ा ही सर दुख रहा चलेगा, नो प्रॉब्लम, इसको बताने की जरूरत नहीं। प्रभु को पसंद नहीं है ऐसा प्रार्थना कितना, उसने किया है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन प्रभु यही बताना चाहते हैं ज्यादा प्रार्थना हम करना है। इसलिए बच्चों, कोई पूछेगा कितना घंटा करता है तो आप बोलना, ये वचन दे दो, 60 मुंह पे मारो वचन, बोलो प्रभु को पसंद है। याद रखना, ज्यादा प्रार्थना करो लेकिन प्रार्थना का दिखावा नहीं करो। आने वाले दिनों में बहुत अतरंगी लोग आएगा, 4 घंटा 6 घंटा, लेकिन याद रखना प्रभु को पसंद नहीं। यीशु ने कहा प्रार्थना के समय द्वार बंद करो। दूसरा, उपवास के समय चेहरा अच्छा बना कर रखो। आमेन। दूसरा बच्चों, हम देखेंगे प्रार्थना का एक समय तुम लोग रेडी करो। पहला, प्रार्थना का जगह पवित्र आत्मा सिखाया। दूसरा, प्रार्थना का दिखावा नहीं करना है, ऐसा पवित्र आत्मा सिखाया। तीसरा, एक प्रेयर टाइम तुम लोग अपने लाइफ में फिक्स करना। आमेन। एक प्रेयर शेड्यूल, है ना। आप लोग जॉब करते हैं, जो लड़कियां हैं वो घर काम में बहुत आगे ना, मम्मी के साथ हेल्प करना। जो लड़के लोग हैं ओह घंटों सोना, बहुत मेहनत है, सपना देखना बहुत मुश्किल का काम है, सच में इट्स वेरी सीरियस। लेकिन बच्चों, पवित्र आत्मा चाहते हैं एक प्रार्थना का शेड्यूल, एक प्रेयर टाइम आप रेडी रखो। सुबह कितने बजे, रात को कितने बजे, आप दोपहर कितने बजे, शाम को कितने बजे, मैं वो प्रेयर टाइम रेडी किया है। लेकिन जरूरी नहीं है मैं जो से आपको बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रेयर शेड्यूल नहीं रखेगा तो शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। आमेन। सपोज कमलेश सोचेगा रात के 9 बजे मुझे प्रार्थना करना है, या अचानक प्रेयर शेड्यूल नहीं रहेगा,
वो सोचेगा वो सोचेगा चलो आधे घंटे के बाद करूंगा, शैतान क्या करेगा, कुछ ना कुछ बिजी काम में उसे डाल देगा। आमेन। उसी तरह बच्चों, आज से एक ऐसा प्रेयर शेड्यूल आप बनाओ जिस समय ज्यादा काम आपको मिलता ना हो, और वो समय आप प्रभु को एक अच्छा प्रार्थना दे सको। आमेन। तो इसलिए सुबह एक टाइम, सुबह तो जरूर करना है। सुबह का प्रेयर बहुत रिफ्रेशिंग प्रेयर होता है। आमेन। आप अमेज़न ऐप को जानते हैं, वो अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस, उनका इंटरव्यू मैंने सुना। उन्होंने कहा मैं अपने कंपनी का बड़ा मीटिंग दोपहर 12 या 1 बजे के पहले करता हूं। क्यों? क्योंकि वो समय माइंड अच्छा रिफ्रेशिंग होता है, चार्ज होता है। फिर दोपहर होने के बाद मैं कोई हैवी लोड नहीं लेता। तो बच्चों, उस व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। he is a really successful man। उस व्यक्ति से हम सीख सकते हैं, है ना। तो उसी तरह सुबह के समय एक फिक्स टाइमिंग रखो, 8 बजे या 9 बजे। एक फिक्स टाइमिंग आज से बनाना शुरू करो। रात को बिजी है तो शाम के समय 5 या 6 बजे। आमेन। तो बच्चों याद रखना, पवित्र आत्मा चाहते हैं एक टाइमिंग शेड्यूल आप आज से तैयार करो। आपको दिन में 5 बार करना है, आपको दिन में 10 बार करना है, इट्स अप टू यू। 2 बार भी चलेगा, 3 बार भी चलेगा, 1 बार भी चलेगा, लेकिन याद रखना बिना प्रार्थना किए एक भी दिन मिस नहीं करना। क्यों? यीशु मसीह हमें चाहते हैं हम शेड्यूल बनाए, क्योंकि यीशु को पता है शैतान हमें बिजी करेगा। हम कॉलेज से आते आते अच्छा नाश्ता कर कर, अच्छा पढ़ाई कर कर अब यही सोचते हैं, मम्मी बोला है तो करूंगा, पापा बोला है, पापा प्रचार किया है तो हाँ आधे घंटे के बाद करूंगा। ऐसा मत करो। आज से एक फिक्स टाइमिंग आप बनाओ। सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे, एक ऐसा टाइमिंग, और उस टाइमिंग को सालों साल आप फॉलो करते रहो। आमेन। कितने लोग करेगा? मैं उनका हाथ उठता हुआ देख सकता हूं। हाँ, एक सब पहला एक अच्छा प्रार्थना का जगह ढूंढो। दूसरा, प्रार्थना का ज्यादा दिखावा नहीं। तीसरा, एक अच्छा टाइमिंग ढूंढो, है ना अभिषेक? एक अच्छा टाइमिंग ढूंढो। जरूरी नहीं है राहुल 8 बजे घुटना टेकता है तो मैं भी घुटना टेकूंगा, नहीं। तो एक अलग टाइमिंग। क्यों? टाइमिंग रहेगा तो सारा काम निपटा कर करेक्ट समय पर आप घुटना टेक कर प्रार्थना करो। अगर टाइमिंग शेड्यूल नहीं रहेगा तो कभी भी तेरा प्रार्थना उल्टा सीधा होगा, और आखिरी में शैतान तुझे प्रार्थना नहीं करने देगा। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक समय ऐसा हुआ, शैतान बहुत बिजी कर दिया। अभी भी मैं बहुत बिजी रहता हूं। कभी कभी शेड्यूल छूट जाता है तो उसे मैं अगले दिन या उससे मैं शाम के समय करता हूं। कम से कम मेरे मन में एक विचार रहता है कि वो शेड्यूल मुझे फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातों को बच्चों आप याद रखना। अभी हम सीखेंगे कि प्रार्थना का प्लान क्या होता है। आमेन। इस उस बाइबल के वचन को हम पढ़े, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 1, 2, 3 and 4। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 1 to 4। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। बच्चों ध्यान से सुनना, ओके। इस वचन में यीशु के चेलों ने यीशु से क्या पूछ रहे? प्रभु हमको प्रेयर सिखाओ, है ना। गाइडेंस इन प्रेयर,
टीच हाउ टू प्रे। और इसमें प्रभु एक अच्छा प्रार्थना उन्हें सिखा रहे। हम वो वचन सुनेंगे, हम जानेंगे व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ जीसस। हाँ, उधर से कंटिन्यू करो बेटा। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यीशु हमसे कह रहे, हाँ, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमेन। आमेन। हमारी प्रार्थना कैसे? ज़ारा का टी शर्ट दिया नहीं प्रभु, है ना भाई? हमारी प्रार्थना कैसे? मेरा जीवन तो पनौती, है ना? हमारी प्रार्थना ऐसे हो। हम शुरुआत में, स्नेहा, बाइबल में लिखा है प्रार्थना से प्रभु का उपस्थिति आता है। मैं तो ये सोचता हूँ कुछ लोग का प्रार्थना से उपस्थिति भाग जाता है। कुछ लोग का प्रार्थना से उपस्थिति, यीशु भी बोलते अरे आ गया बाबा। अरे सरदर्द आ गया बाबा, बस हो गया। आमेन। क्यों प्रभु भाग जाते हैं या क्यों प्रभु उठ के चले जाते हैं? क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी प्रार्थना एक ऑर्डर में नहीं है। हम सीधा धमकी से शुरू करते हैं। हम सीधा धमकी से शुरू करते, अरे वापिस मराठी में फेल हो गए हमें, अरे वापिस बर्बाद हो गए, मैं हम यही सोचते। आमेन। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं भी ये करता हूं और मुझे पता है आप लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, इसमें यीशु का प्रार्थना देखो। उस प्रेयर को पढ़ना बेटा। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना हे जाए। पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी यीशु मसीह, बच्चों आप ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ये प्रार्थना रटने के लिए नहीं बोल। कुछ महान साइंटिस्ट लोग रटता है, इधर भी प्रार्थना करके रटता है एकदम। रटो मत। प्रार्थना एक बात है। प्रार्थना कोई क्वेश्चन आंसर या ब्रीफ सॉल्यूशन नहीं है। प्रार्थना इज अ कम्युनिकेशन विद गॉड। आमेन। हमेशा मैं पूनम से बोलूंगा कैसे हो पूनम, गाना गाया, अगले दिन भी कैसे हो पूनम, गाना गाया। ऐसे मैं रोबोटिक स्टाइल में नहीं बोल सकता, है ना? मैं उसको जानता हूं, हमारा एक रिश्ता है। मैं एक उस प्यार से मैं बातें करेगा इससे, कैसे हो बेटा, तेरा पापा कैसे, अगले दिन मम्मी कैसे बोलूंगा, है ना? रोज पापा के बारे में पूछूंगा तो ये बोलेगी अपनी माँ से, है ना, मम्मी पति को संभालो। एल्विन ब्रदर हमारे बाप के पीछे बड़ा हुआ ऐसे पूनम बोले। तो इसमें याद रखना बच्चों, यीशु मसीह ये प्रार्थना रटने के लिए नहीं बोल रहे, बट अवर गॉड इज टीचिंग द प्रिंसिपल, गॉड इज टीचिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेयर। एक प्रार्थना का जो तरीका है, तो पहला क्या है? परमेश्वर का बड़ाई, पवित्र खुदा। आमेन। इस वचन कितना सुंदर वचन। आमेन। सोचो, हमारी दुनिया बनाने वाले परमेश्वर ये प्रार्थना अपने बच्चों को सिखा रहे। पहला, एड्रेस गॉड। यानी जब भी बच्चों आप प्रार्थना करो तो कोई अपना लालचीपन लेकर, अपना घमंड लेकर प्रार्थना नहीं करना। पहले घुटना टेकेगा तो दिल खोलकर स्वर्गीय पिता का तारीफ करना है। आमेन। वो तारीफ के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। वो खुदा का नाम लेने का योग्यता हमारे अंदर नहीं, है ना? हम पाप करता है, हम गलती करता है, तो भी यीशु हमें बोल रहे तू मेरा नाम अपने मुंह से ले। लेकिन बच्चों याद रखना, इस वचन में पवित्र आत्मा क्या ऑर्डर दे रहे? जब भी प्रार्थना करो, प्रभु जानता है तेरा मम्मी बंधन में, प्रभु जानता है तेरे पास नौकरी नहीं, प्रभु जानता है तू बीमार है, लेकिन स्टार्टिंग अपना दर्द का विषय लेके शुरू नहीं करना। आमेन। अपना दर्द का विषय लेके शुरू नहीं करना। यीशु मसीह क्या बोला है? तेरा प्रार्थना का शुरुआत में फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू एड्रेस द हेवनली गॉड। तुझे स्वर्गीय पिता को महिमा देना। पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे आसमानी खुदा, मेरी प्रार्थना में तू कान लगा परमेश्वर। आमेन। तो याद रखना, प्रार्थना में पहला
प्रभु का बड़ाई करना है, प्रभु का महिमा करना है, सीधा कंप्लेन शुरू मत कर। ओके? इसलिए प्रार्थना में उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यीशु खुश नहीं होते। यीशु बोलते अरे इससे मेरा महिमा करना चाहिए, मेरा बड़ाई करना चाहिए। ये आते ही पहले शुरू हो गए। माँ बाप भी बोलते हैं ना, शुरू हो गए, अंडे से निकला नहीं, शुरू हो गए। यस, उसके आगे के वचन को पढ़े। पहला द प्रेयर ऑफ जीसस, ऐसा पॉइंट लेकर पहला पॉइंट एड्रेस गॉड, ऐसा आप लिखो। जब राहुल लिखेगा, जेरी या बाकी जन वो पॉइंट्स याद करके राहुल को गाइड कर। हाँ, आगे के वचन को पढ़े। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हाँ, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। आमेन। बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है? तेरा राज्य आए, यानी दूसरा योर विल बी डन। आमेन। पहला परमेश्वर के नाम का हमें बड़ाई करना है, हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। ये वचन अच्छे से सुनना। अभी जो प्रार्थना कर रहे हो, आपको शायद मालूम पड़ रहा होगा कि मेरी प्रार्थना का ढंग बराबर नहीं था, मैंने अपनी प्रार्थना में बहुत गलती किया, लेकिन आज प्रभु आपको एक सही दिशा में लेकर जा रहे। पहला क्या है? परमेश्वर की महिमा करना है, खुदा को एड्रेस करना है। दूसरा है तेरा राज्य आए, यानी तेरी इच्छा पूरी। आमीन। कभी कभी हम फोर्स करते हैं, प्रभु वो कॉलेज मुझे चाहिए, कभी कभी हम फोर्स करते हैं वो कंपनी मुझे चाहिए। आमीन। इधर भी कुछ जवान बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है तो वो लोग चर्च नहीं आते। वो लोग बोलते हैं प्रभु सुन रहा ही नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, प्रभु ने अपने वचन में क्या लिखा? दूसरा तुम्हें क्या प्रार्थना करना है? तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वैष्णवी एक अच्छा कीबोर्ड लिया, संकेंदु एक अच्छा कीबोर्ड लिया, है ना? संकेंदु बहुत दिनों से मुझे ये बात बोला, पास्टर मुझे पियानो लेना है। मैंने उससे हमेशा कहा तू पापा को कुछ फोर्स मत कर। पापा को एक बार बोला तो प्रार्थना कर कर यही बोल, स्वर्गीय पिता तेरी इच्छा होनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने उसका मनोकामना पूरा किया। यही है प्रभु का शक्ति, प्रभु पूरा करेगा बच्चों। लेकिन अगर ज्यादा लालचपन करेगा, ज्यादा ग्रीडीपन करेगा तो प्रभु को मालूम पड़ेगा कि सांझ को मुझसे ज्यादा प्यार नहीं, सांझ जो वस्तु मांग रहा है उससे ज्यादा प्यार। हाँ भाई, जो चीज ज्यादा हमको पसंद है हम वो मांगते हैं। इसलिए ये प्रार्थना का मतलब क्या है? हम अपने आप को झुका रहे। आमेन। सांझ का एक वीडियो पूजा ने मुझे दिखाया, अच्छा मेकअप का एक वीडियो डालता है, तो सांझ के मन में होगा एक अच्छा महंगा लग्जरी मेकअप सेट मुझे मिल जाए, है ना? होगा उसको मेकअप लाइन में इंटरेस्ट है। लेकिन सांझ ये प्रार्थना नहीं करना है प्रभु एक अच्छा कॉस्टली मेकअप सेट मुझे कोई खरीद के दे दो, मेरे पेरेंट्स खरीद के दे दो, या मुझे गिफ्ट करो। वो फोर्स नहीं करना है, वो पहले प्रभु का बड़ाई करना है, प्रभु का महिमा करना है। दूसरा वो बोलना है प्रभु तेरी इच्छा है तो तुम मुझे दे। आमीन। यस बच्चों, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, हम जबरदस्ती का प्रार्थना नहीं करना। तेरी इच्छा होगी तो तू मुझे देना, तेरी इच्छा होगी तो तू मुझे दे। आमीन। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, उनका मोटरसाइकिल, उनका बाइक का नया शॉप है। तो बहुत पहले उन्होंने मुझसे कहा ब्रदर मैं आपको नया बाइक गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रभु का महिमा, सच्चे मन से सेवा करेगा प्रभु ला कर देता है। लेकिन बहुत उनका बाइक का डिले होने लगा और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि वो नया बाइक तेरे जीवन में मैं नहीं लाना चाहता। मैंने वजह नहीं पूछा, यीशु को इच्छा नहीं है तो जरूर प्रभु हमारा कुछ भला चाहते हैं। आमीन। प्रभु हमारा कुछ भला चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर जब कुछ नौजवान बोलते हैं पास्टर जी मेरा फ्यूचर पार्टनर के लिए आप प्रेयर करो,
तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं, जो तुझे अच्छा लगता है वो नहीं मांगना, जो तेरे लिए प्रभु अच्छा कर कर रखा, जो तेरे लिए अच्छा है ऐसा एक जीवन साथी तू मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो प्यारे लोगों, हमारे प्रार्थना में एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक प्रभु ने सिखाया। आते ही शुरू नहीं हो जाना बेशर्म जैसा, है ना। पहले प्रभु का वड़ाई, पहले प्रभु का महिमा, दूसरा तेरी इच्छा पूरी होना है, तेरा स्वर्ग राज आना है, तेरा इच्छा मेरे बिजनेस में हो, तेरा इच्छा मेरे जॉब्स में हो, है ना। सुष्मिता अभी डिग्री किया, वो इंटरव्यू दे रहे, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन मुझे विश्वास है एक बहुत अच्छा नौकरी प्रभु सुष्मिता को देगा। लेकिन ये बेटी शायद पहले दुखी होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन आज के वचन के बाद सुष्मिता अपना मन बदलना है। सुष्मिता यही प्रार्थना करना है, प्रभु ये तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है कि 2 महीने बाद काम हो, 2 हफ्ते बाद काम हो। आमेन। यस, उस प्रार्थना को पढ़े। पहला, यू हैव टू एड्रेस गॉड। सेकंड, योर विल बी डन, यही प्रार्थना करना है। तीसरा, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। उसके बाद मांगना शुरू करना है। आपका फेवरेट पार्ट आ गया। ओह क्या स्माइल है, देखो कमलेश क्या हंस रहा है। तो कमलेश बोल रहा है अभी तो BMW गाड़ी मैं लेके ही रहेगा। हमें बच्चों मांगने से प्रभु मना नहीं किया। प्रभु नहीं बोलते है औकात है क्या तेरा, इसको प्रभु नहीं पूछता। अच्छा तू एडिडास का शू मांगेगा, चप्पल खरीदने, चप्पल नहीं दूंगा मैं तेरे को, तू शू मांग रहा है, ऐसा प्रभु नहीं बोलेगा। आमेन। क्या लिखा है उसके बाद? पहला खुदा की महिमा, दूसरा उसकी इच्छा पूरी हो, तीसरा जो भी पृथ्वी की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चाहिए, यानी आपका जो मांग है वो आप पूरा करना है। आमेन। बच्चों इस प्रार्थना में यही आपको परमेश्वर को साबित कराना है कि खुदा तुझसे ज्यादा और किसी चीज में मैं प्यार नहीं करूं। अगर ऐसा मन लेके आप प्रेयर करेगा तो आपकी प्रार्थना में बड़ा चमत्कार प्रभु आपके जीवन में लेकर आएगा। आमेन। आमेन। तो उसमें क्या हुआ? उस प्रार्थना में पृथ्वी की वस्तुएं, यानी जो भी वीडियो गेम हो, है ना, जो भी पूमा का शू हो, गुची का बैग हो, तो सब प्रभु आपके जीवन में देगा। आमेन। यस, आगे पढ़े। और हमारे पापों को क्षमा कर। देखो कितना भी आप पवित्र हो जाओ, आपकी हर प्रार्थना में आपको क्षमा मांगना है, ये आप याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम इंसान है, मैं प्रभु का दास हूं, मैं भी गलती करता हूं, मुझसे भी पाप हो जाता है। लेकिन इस प्रार्थना में यीशु ने क्या कहा? पहला मेरी महिमा, दूसरा तेरी इच्छा पूरी हो वो बातें, तीसरा जो भी तुझे चाहिए, और चौथा फॉरगिवनेस, यानी पाप का क्षमा का प्रार्थना तो तेरी हर प्रार्थना में करना। प्यारे बच्चों, शायद एक हफ्ता मसिल पकड़कर बिना पाप किए तो बहुत अपने शरीर को मेंटेन किया हो, है ना। मैं गलती नहीं करूंगा बोलकर पागल बनकर तू चल रहा है। लेकिन याद रखना, पौलुस ने क्या कहा? तू इंसान है तो तू गलती करेगा। कभी ये नहीं सोचना मुझसे गलती नहीं होगा। गलती नहीं होगा तो आप इंसान नहीं, आप परमेश्वर होंगे। लेकिन आप परमेश्वर नहीं। इसलिए यीशु क्या समझाना चाहते हैं? हर प्रार्थना में भले पाप आज ना किया तो भी बोलना, प्रभु कुछ पाप अगर हो गया है तो मुझे क्षमा कर। प्यारे बच्चों, ये क्षमा आप मांगोगे तो आपके अंदर नम्रता आएगा, और बाइबल में लिखा है नम्रता आएगा तो यीशु तुझे दुगना आशीष करेगा। आमेन। अगर हमारे अंदर आ गया ये दिन, मैं पाप नहीं किया, मैं मसीह जीवन अच्छा गुजार रहा हूँ, मैं झगड़ा कर सकता था, मैंने किया नहीं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। भले ही आज गलती ना किया, भले ही आज एक झगड़ा का आपने समाधान किया,
तो भी आप घुटना टेकेगा तो पाप का क्षमा मांगना है। आमीन। यही यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। उसके बाद क्या लिखा? क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना ले। आमीन। पांचवा क्या है? हमें परीक्षा में ना ले। आमीन। पहला खुदा को एड्रेस करना है, दूसरा उसकी इच्छा पूरी हो ये प्रार्थना करना है, तीसरा जो भी हमारा मांग है वो, चौथा फॉरगिवनेस पाप का क्षमा, और पांचवा क्या है? परीक्षा से हमें एक मुक्ति दे। आमीन। एक डिलीवरेंस आप मांगना है, आपकी प्रार्थना में एक डिलीवरेंस आप मांगना है। प्यारे बच्चों, शैतानी शक्तियां देखकर, तेरे परिवार में बड़ा बड़ा समस्या देखकर तू डरना नहीं। यीशु ने तुझे पूरा फ्रीडम दिया है। कितना भी बड़ा टेम्पटेशन हो, तू अगर घुटना टेक कर बोलेगा वो परीक्षा से मुझे छुड़ा ले, तो परमेश्वर एक नया दरवाजा तेरे जीवन में खोलेगा। आमीन। हालेलुया। वो अधिकार प्रभु तुझे दिया है, वो पावर प्रभु तुझे दिया है। तेरे परिवार में तुझे सताने वाला शैतानी शक्तियों को कुचलने का शक्ति तेरे जुबान से आज स्वर्गीय पिता बाहर निकालने जा रहे हैं। आज तुम्हें रिसीव करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखा, पाप का क्षमा होने के बाद एक चंगाई का प्रार्थना। यस प्यारे लोगों, चंगाई मांगते समय हमें अपने आप को कैसा बनाना है? नम्र बनाना है। उसके बाद आखिरी में क्या है? क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना ला। उसके आगे के वचन को पढ़े। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे बच्चों, यही वो प्रार्थना है जो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। याद रखना। तो मुझे सच सच बताओ, ऐसा प्रार्थना आप में से कौन करता था? हाथ ऊपर उठा। हाँ, अरे ऐसा प्रार्थना आप लोग करते हैं? वेरी गुड। जरी झूठ बोले डायनोसर काटे। हाँ, सच में करते। जरी करता है। जरी का पेरेंट्स बहुत प्रेयर लाइफ है। मैं अच्छा है। ब्रायन भी करता है। तो तेरा बाल देख के लगता नहीं मेरे को। अच्छी बात है। तो कौन कौन ऐसा प्रेयर करते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तू भी करता है? अच्छा, नहीं पर तेरे चेहरा का एक्सप्रेशन में देखा तो ऐसे लगा तू पहली बार सुन। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखो कितना जवान लड़का है तो भी वो प्रेयर करता है। उसके लिए तालियां बजाओ, है ना? हीरा है। तो बच्चों याद रखना, हमारी प्रार्थना का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। पहला, स्वर्गीय पिता का महिमा करना है। आते ही बेशरमों जैसे शुरू मत हो जाओ। ये दे वो दे, ये दे वो दे। हाँ, चलते शॉपिंग मॉल में आए ऐसा, है ना? यीशु मसीह कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। अरे थोड़ा सस्ता करो, सस्ता करो। तो पहला प्रार्थना में प्रभु का बड़ाई करना है ना? आराधना में हम गाते हैं ना, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, ऐसा तमाम हम जो गीत गाते हैं, खूब तारीफ करो परमेश्वर। भले ही पप्पा बेल्ट से पीछे मार रहे, भले ही तू बड़ा डंडा खाया हो, तो ये प्रार्थना करेगा तो तेरे बाप को मारने का स्वर्गदूत भेजना नहीं। ये सब गुस्सा नहीं, ये प्रार्थना का ऑर्डर है। सबसे पहले यीशु को महिमा देना। हाँ बच्चों, आप स्टार्टिंग में जो भी मांगते हैं वो गलत प्रार्थना। पहला प्रभु को महिमा देना। स्वर्गीय पिता, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तूने एक अच्छा एल्विन ब्रदर हमको दिया, अच्छा पप्पा हमको दिया, एक अच्छा मंदिर में तूने हमें लाया। ऐसे तमाम तारीफें प्रभु का करने के बाद फिर बोलना है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दो। मुझे प्रभु ये स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे प्रभु ये बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उस बिजनेस में तेरा इच्छा है क्या, वो आप मेरे को बताओ। ऐसा प्रार्थना करने के बाद फिर आप मांगना है। जो भी कमी घटी है आप मांगना है।
आगे क्या लिखा? पाप का क्षमा, पाप का क्षमा। बाइबल में लिखा है पौलुस बहुत महान दास था, बहुत पवित्रताई में चलता था, बड़े बड़े मसीह जीवन में बड़ा बड़ा जोखिम पौलुस उठाया, तो भी पौलुस कलीसिया में चिल्ला कर कहता था आप सब में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आमीन। लेकिन हम कैसे बोलते हैं, मैं पापी हूं लेकिन स्नेहा ज्यादा पापी है ना, हम ऐसा बोलते, हमारे अंदर घमंड होता है। कुछ नया बोलेगा मैं पापी हूं लेकिन वैष्णवी मेरे से थोड़ा ज्यादा पापी है, हम ऐसा बोलते। लेकिन बच्चों, हम अगर क्षमा मांगेगा तो प्रभु हमको नम्र करता है। आमीन। बहुत प्रार्थना का रेवलेशन है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है ना। ज्यादा पढ़ाएगा तो घर पे जाने के बाद अरे बाप रे, सर पकड़ के जाए। ओके प्यारे बच्चों, याद रखना आज इस शाम की आराधना प्रार्थना में पवित्र आत्मा चाहते हैं एक अच्छा प्रार्थना का जगह ढूंढना। आज से ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद मुझे बोलना है। ओके, मिशाइल आके मुझे बोलना है ब्रदर मेरे घर में एक प्रेयर का जगह मैं देख लिया, मैं आज से उधर ही प्रेयर करेगा जब तक वो घर में मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का ज्यादा दिखावा नहीं करना। ओके, प्रार्थना का ज्यादा दिखावा नहीं करना। कितना घंटा, कितना मिनट, उससे बताओ मत, वो यीशु को पसंद है। उपवास का ज्यादा दिखावा नहीं करना, है ना। पूनम को 20 दिन लेना है, 20 दिन ले लो, लेकिन पूनम को ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ऐसा सामने ऐसा करके क्या हो गया, 20 दिन 20 दिन, मतलब बोलने के बाद खुशी मिल जाती है, अरे मालूम पड़ेगा मेरा नाम, मेरा तो तारीफ होएगा, ऐसा नहीं सोच। याद रखना, भले ही 20 दिन उपवास कर कर स्नेहा तारीफ करेगा, क्या बात है पूनम, तू 41 डेज भी करो, यीशु का रिकॉर्ड भी तू तोड़ो, है ना, स्नेहा बोले। याद रखना, शायद स्नेहा तारीफ करेगा, स्नेहा प्राउड फील करेगा, लेकिन यीशु नाराज हो जाए। इंसान को खुशी मिले और यीशु नाराज हो गया तो वो जीवन का क्या मतलब। लेकिन अगर आप असली मसीह जीवन में जा रहा है तो शायद सामने वाला नाराज होगा लेकिन यीशु खुश होगा। यही असली मसीह जीवन मैं अनुभव किया। शायद हमारे अपने नाराज हो जाएंगे, ऐसा कदम लेगा तो बात नहीं करेगा, लेकिन प्रभु बोलेगा ये मेरा असली बेटा है, ये मेरे लिए खड़ा हुआ। आमीन। एक प्रार्थना का अच्छा जगह देखो। दूसरा, प्रार्थना का एक अच्छा शेड्यूल बनाओ। कभी भी उठते सोते भागते समय प्रार्थना नहीं करना। 8 बजे उसको मेंटेन करो, रात के 9 बजे उसको मेंटेन करो। शेड्यूल बनाएगा तो 2 घंटे पहले पवित्र आत्मा अलार्म बजाएगा तेरे अभिषेक के अंदर कि 2 घंटे के बाद तुझे घुटना टेकना है। आमीन। प्यारे बच्चों, उसमें बड़ा ब्लेसिंग आता है। मेरे जीवन में बड़ा ब्लेसिंग मैं देखा। मैं भी प्रेयर करता था पर शेड्यूल नहीं था, लेकिन मैंने एक फिक्स टाइमिंग रखा, मैं वो टाइमिंग को मेंटेन किया और जो मांगा नहीं वो भी प्रभु यीशु मसीह मुझे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखना, प्रार्थना का जो ऑर्डर पवित्र आत्मा हमें सिखाया है ना। जिन जिन बच्चे वो प्रार्थना करते, मैं वाकई में बहुत खुश हूं। ऐसी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। मांगना बुरी बात नहीं, चंगाई मांगना बुरी बात नहीं, लेकिन शुरुआत में चंगाई मत मांगो। शुरुआत में ही तुम्हारा घर का बोझ उठाने का बात मत करो। शुरुआत में यीशु मसीह का बड़ाई तुम करना, यीशु मसीह का महिमा तुम करना। मूसा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर। आमीन। प्यारे बच्चों, आज ये तरीके से तू प्रार्थना शुरू कर। अगले हफ्ते मेरा यीशु तुझे नया बनाकर इधर लेकर आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। तेरा पढ़ने का तरीका नया हो जाएगा, तेरा नौकरी का तरीका नया हो जाएगा, तेरा घर नया हो जाएगा। आज ये पवित्र आत्मा बोल, हालेलुया। आज प्रभु एक ऑर्डर तुझे दिया है, ये ऑर्डर में तू प्रेयर करना है। आमीन। यही प्रार्थना का अर्थ है प्यारे बच्चों, एक कनेक्शन। प्रार्थना हमें परमेश्वर से, यीशु से जोड़ता है। ओके, तो मैं विश्वास करता हूँ जो भी शिक्षा आज पवित्र आत्मा दिया आप उसको फॉलो करो।
एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात है। सीक्रेटली प्रेयर करना, प्रेयर का एक जगह ढूंढना एक सिंपल बात है, लेकिन याद रखना इस बात का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यही आपका फाउंडेशन, क्योंकि अगर आप इधर मजबूत नहीं हुआ तो बड़ा आशीष उठाने का शक्ति नहीं होगा तेरे हाथों में। आमेन। रेसलिंग में है ना, नया नया उसको लड़ाई में नहीं छोड़ता है, कड़क ट्रेनिंग उसको देते हैं। क्यों? ताकि सामने वाले अपोनेंट का पंच वो झेल सके। सामने वाला अपोनेंट जब लात मारेगा, जब मुक्का मारेगा, तो उसे झेलने का एक पावर हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए बच्चों, आज जो मैं सिखाया ये आपको मजबूत करेगा आने वाले बड़ी आशीषों को संभालने के। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करता हूं मैं इस सुंदर समय के लिए। आज जितने बच्चे इस प्रार्थना में मौजूद हैं, इस लाइव में जितने जवान बच्चे हमें देख रहे हैं, हर एक बच्चों को आप छू लीजिए, आप मुझे छू लीजिए, हम सबको आप छू लीजिए परमेश्वर। प्रभु आज एक अच्छा प्रार्थना का महत्व हमने सीखा। प्रार्थना कैसे करना, प्रार्थना किस तरीके में करना, प्रार्थना में कौन सा शब्द बोलना, प्रार्थना में कैसे यीशु की इच्छा में चलना, सब प्रभु आपने हमें सिखाया। प्रभु हमें क्षमा करना, बीते दिनों में हमारी प्रार्थना सही नहीं थी, हम प्रार्थना बराबर किया नहीं, उस कारण आशीष में रुकावट आया। हम प्रभु आपको ही शिकायत की, हम आपसे निराश हो गए। लेकिन प्रभु जो भी हमारा पाप है हमें क्षमा कर। प्रभु आज इस प्रार्थना को निभाने का अभिषेक आप हमारे जीवन में दे दो परमेश्वर। वो आज एक नया सोच से, एक नया चेहरे से, एक नया सिचुएशन में पवित्र आत्मा सारे बच्चों को चलाए प्रभु जी। प्रभु तेरा नाम ऊंचा है, हम घटने पाए परमेश्वर, हमारा यीशु उठने पाए। धन्यवाद प्रभु तेरे उस क्रूस के बलिदान के लिए। खुदा तू अगर लहू ना बहाता आज इस मंदिर में हम बैठे नहीं होते थे, आज हमारा जीवन बर्बाद होता था। आज गलत संगति, नशा, वो शराब, सारी गंदगी से बर्बाद होते थे। लेकिन प्रभु धन्यवाद तेरे बलिदान, तेरे लहू के कारण परमेश्वर आज यहाँ हम सही सलामत खड़े हैं परमेश्वर। प्रभु इस प्रार्थना को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। We will thank God for this anointed word. The book of Romans chapter 1 verse 16 says that always pray, never lose hope. Pray because he listens, and prayer is the weapon to fight against the Satan. So now I would like to hand over the mic to Sister Michelle to end this session with a short prayer. Let's bow our head and close our eyes. Thank you, Lord, for this time, O Lord. Thank you for this day that you have added into our lives, O Lord. Thank you, Lord, that you kept us alive and brought us together here, O Lord, for this amazing word that we heard through Pastor Edwin, O Lord. Thank you, Lord, that you have made him our mentor and leader, O Lord, so that through him we learn new things about you and new revelations, O Lord. Thank you, Lord, that you have kept us alive till now and will help us lead a life that you want us. Thank you for everything that you've done for us, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen.